Hello, welcome back to Kritika Math's Astrology. Well, this video is very special. It's about the monthly transit of Venus in Cancer, and it will stay in the sign from 22nd August until 15th September. So, this video is special because Venus as a planet for all of us is important. It's about beauty, luxury, it's about romance, relationships, and money. So, usually Venus in the sign of Cancer would give you good results, except for the fact that you might have to control your emotions a bit. You can overindulge into relationships, money, expenditure. So if you take care of that challenge area, I think that you are pretty much good, and I think this is going to be there for everyone. As the universe itself, for the world itself, if I have to make a prediction, then yes, overindulgence is something that we can see, and that can be in food, that can be in expenditure, that can be in relationships, over expressive in relationships. So when we talk about doing it over, that's when this sign and placement makes a lot of sense. So let's start with Aries. But yeah, before that, if you haven't subscribed to my channel, please go ahead and subscribe. If you haven't tapped the bell, please do tap the bell, because without tapping the bell, you will not come to know when I post a new video. So that's important. Again, this video has to be watched according to your moon sign. 90% impact moon sign का आएगा, 10% impact आपके लग्न का आएगा, ascendant का आएगा. So you have to watch it according to your ascendant and moon sign both, but put maximum focus on your moon sign. Let's start with Aries. Now for Aries, this transit is in the 4th house. So बहुत सारा impact आपको अपने घर पे देने की जरूरत है. If that requires you to take your work home, do that. If you're planning to buy a new vehicle, if you want to buy a new property, and if the chart supports it, if your timing supports it, you can definitely go ahead and do that. इस टाइम आप फैमिली के साथ बहुत बिताने की कोशिश करेंगे, और बिताना भी चाहिए. लॉट ऑफ टाइम इज गोइंग टू गो विद योर फैमिली. यू माइट वांट टू सिट विद देम, डिस्कस थिंग्स विद देम. बहुत टाइम से अगर आपकी बॉन्डिंग नहीं हुई है तो वो करने का भी ये सही टाइम है. नए रिलेशनशिप्स आपके शुरू हो सकते हैं, पुराने रिलेशनशिप आपके इस महीने वापस आ सकते हैं. करियर के लिए अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आप कंफर्ट सीख करेंगे अपने काम पे. मतलब यू वांट टू सिट ऑन अ काउच एंड वर्क. You probably want to bring your work to your home, and you want to work from home, or you want to bring your comfort to your workplace. So you want to make your workplace very clean, nice, full of fragrances, beauty. Put some flowers over there perhaps. So you can use it as a remedy also, कि अगर आपको काम करने का मन ना करे या डिमोटिवेटेड फील करे, तो अपने वर्क प्लेस को ब्यूटी से भर दीजिए. अपने वर्क प्लेस पे कंफर्ट लेके आइए. प्रॉब्ली यू वांट टू यूज नेक पिलोज, और यू वांट टू हैव अ फुट रेस्ट. आप अपने ऑफिस में काउच यूज कर सकते हैं, कंफर्टेबल चेयर्स यूज कर सकते हैं. तो ये चीजें आपको मोटिवेटेड रखेंगी काम करने के लिए, राइट? That's all about Aries. Let's come to Taurus. सो टॉरियंस के लिए जो ट्रांजिट है ये आपके 3rd हाउस में हो रहा है. मुझे लगता है कि फैमिली रिलेशनशिप्स को बेटर करने का बहुत अच्छा टाइम है. सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, और आपको इसको यूज़ करना चाहिए एज अ स्ट्रैटेजी. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, आप कोशिश करिए कि लोगों से मिल के ढूंढने की कोशिश करिए. रेफरेंस बना के कोशिश करेंगे तो जल्दी जॉब मिलेगी. सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव रहेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए, ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिलेंगी, ज़्यादा जल्दी जॉब्स मिल सकती हैं आपको. नए रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश करें. तो आई थिंक सोशल मीडिया इज अ टूल दैट यू कैन यूज फॉर अ लॉट ऑफ योर ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स परहैप्स राइट नाउ. कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है. किसी से वापस बात करनी स्टार्ट करनी है, दोस्ती करनी स्टार्ट करनी है, तो वो कर सकते हैं. आपको इनिशिएट करना चाहिए. आपको इस महीने एक चैलेंज एरिया है लेजीनेस. अगर आप लेजीनेस को डिफीट कर पाएंगे तो इस महीने आप बहुत कुछ कर पाएंगे. आप चीजों को इनिशिएट भी करने की कोशिश करिए. डोंट जस्ट सिट एंड वेट फॉर थिंग्स टू हैपन. दैट्स ऑल फॉर टॉरस. लेट्स कम टू जेमिनी नेक्स्ट. नाउ फॉर जेमिनाइज द ट्रांजिट इज इन द 2nd हाउस. मुझे लगता है कि जो लोग मीडिया इंडस्ट्री में हैं, आर्टिस्ट हैं,
पॉडकास्टर्स हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, फॉर दैट मैटर यूट्यूबर्स हैं जो कम्युनिकेशन का यूज करते हैं अपने काम में, बातचीत करने का स्किल या टूल यूज करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मुझे ये भी लगता है कि नए रिलेशनशिप्स आपके इस महीने बन सकते हैं, तो अगर आप ऐसा ट्राई कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं या चाहते हैं नए रिलेशनशिप्स बनाना, तो इस महीने फुल एफर्ट मारो, हो जाएगा। पैसा इस महीने इंक्रीज होगा, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, हो सकता है आप एसेट बनाने पे फोकस करें, आप स्टॉक्स बनाने पे भी फोकस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, it's okay, you can definitely go ahead and do it and it will be in fact beneficial for you. बॉन्डिंग के लिए इस टाइम को यूज करिए। एक चीज है जो आपको थोड़ा सा चैलेंज इस एरिया में आ सकता है, इज योर हेल्थ, स्पेशली फॉर अ फीमेल। पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम्स अगर आपको ऑलरेडी हैं तो वो इस टाइम पे बढ़ सकती हैं। शुगर इनटेक बहुत ही केयरफुली करिए, डोंट ओवर इंडल्ज इन फूड, स्वीट्स। आई नो फेस्टिविटीज काफी सारी हैं, बट दिस इज वन एरिया जहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर जेमिनी। नेक्स्ट इज कैंसर। फॉर कैंसर दिस ट्रांजिट इज इन योर फर्स्ट हाउस। मुझे लगता है कि ये टाइम ऐसा है जहां पे आप बहुत ही चार्मिंग लगेंगे दूसरों को, आप खुद भी अच्छा फील करेंगे, दूसरे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, बातचीत शुरू करने की कोशिश करेंगे, आप पे नेचुरली अट्रैक्ट होंगे, एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी आपकी बनके बाहर आएगी, आप चार्मिंग लगेंगे लोगों को। प्रपोजल इस टाइम पे आपको मिल सकते हैं, अगर आप किसी को प्रपोज करने का रिलेशनशिप में सही टाइम ढूंढ रहे थे तो दिस इज द टाइम यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। एक्सपेंसेस बहुत होंगे लेकिन आपके खुद के ऊपर, ऑनलाइन शॉपिंग, ब्यूटी, कॉस्मेटिक, लग्जरीज, इन सारी चीज़ों पे आप बहुत ध्यान देंगे। इवन इफ यू आर अ मेल, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अगर यूज ऑलरेडी करते हैं तो उन पे पैसा इस टाइम पे बहुत खर्चा होगा आपका। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आई फील दैट दिस इज अ मंथ यू कैन पुट योर एफर्ट इनटू दैट, बिकॉज दिस इज रियली अ टाइम वेर इन लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होंगे। तो फॉर मनी मेकिंग दिस टाइम इज वेरी गुड, एंड इफ यू आर इनटू बिजनेस, of course that's what a businessman and woman would want, is to get clients, to get customers. So this is a very good time to make money. And even if you're not into business, नई नई schemes जिससे आपको पैसे मिल सकते हैं, बन सकते हैं, even if it's that about investment and all, वो भी इस टाइम पे आइडियाज भी आएंगे, इम्प्लीमेंट भी आप करेंगे, और ये आपको थोड़ा रिस्ट्रेंट के साथ इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ना चाहिए। इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बट आई वुड आस्क यू नॉट टू गेट टू रिस्की इनटू दैट बिकॉज ऑफ द अदर ट्रांजिट गोइंग ऑन राइट नाउ। दैट्स ऑल फॉर कैंसर। नेक्स्ट इज लियो। फॉर लियो नेटिव्स दिस ट्रांजिट इज इन देयर 12th हाउस। मुझे लगता है कि कोई सीक्रेट रिलेशनशिप बन सकता है, आप किसी से अट्रैक्ट हो सकते हैं, परहैप्स दिस इज इन योर वर्क प्लेस या डेली रूटीन में आप जिन लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, somewhere or the other I feel that you might be attracted to some people in a very secretive manner. ट्रैवल हो सकता है, एक्सपेंस आपके इस महीने बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो आपको थोड़ा माइंडफुल रहना है उस एरिया में। अगर आपको ऑलरेडी, आप एक फीमेल हैं और आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो इस महीने वो बढ़ सकती है। ब्रीदिंग इश्यूज भी आपको रह सकते हैं एज अ मेल और अ फीमेल। वर्क स्ट्रेस काफ़ी रहेगा, स्पेशली फीमेल्स की वजह से। आई फील दैट आपके ऑफिस में कुछ कलीग्स हैं जो लेडीज़ हैं और उनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और अगर ऐसा है तो वो और बढ़ेंगी, और ऐसा नहीं है तो अब वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आई वुड आस्क यू, एडवाइज यू टू जस्ट बी पेशेंट अबाउट इट। ज़्यादा रिएक्टिव इस टाइम पे आपको नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ अदर ट्रांजिट्स गोइंग ऑन, स्पेशली द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न हियर। तो ज़्यादा रिएक्टिव अप्रोच मत रखो, बी इन योर स्पेस, बी इन द क्रिएटिव mind space that you will be in this month, and try to solve problem in a creative manner is what I would suggest. That's all for Leo. Let's come to Virgo now. For Virgo natives, this transit is in your 11th house. पैसा तो मुझे बढ़ता हुआ दिखता है, बहुत सारी स्कीमें आप लगाएंगे, मेथड्स आप अपना सकते हैं पैसा बनाने के लिए, और
इन्वेस्टमेंट्स भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। मुझे लगता है कि नेटवर्क सर्कल्स को, कॉन्टैक्ट्स को आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आप नई जॉब लेना चाह रहे हैं, नए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल, अपने कलीग्स के सर्कल को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने का ट्राई करिए, वहाँ पे स्ट्रैटेजी लगाइए, वहाँ पे ढूंढार मचाइए, वहाँ पे आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ें मिल सकती हैं जो बहुत अच्छी होंगी, स्वीट होंगी आपके लिए। आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो रिलेशनशिप में तब्दील हो सकते हैं, योर फ्रेंड्स कैन बिकम योर लव मेट्स दिस टाइम, सो दैट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर। इन्वेस्टमेंट्स मुझे बनते दिखते हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स मैं सजेस्ट करूंगी कि आप करें इस टाइम पे, आपको बोनस भी मिल सकता है इस टाइम पे। आप अपने काम को बहुत इंजॉय करेंगे, काम में मन लगेगा, आपके अच्छे सर्कल्स बनेंगे, फ्रेंड सर्कल्स बनेंगे, और काम को भी आप इंजॉय करेंगे। जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास अभी हैं वो आपके मनपसंद की हैं, आपको आपके पैशन से वो चीज़ें एसोसिएटेड हैं, सो दैट्स ऑल गुड फॉर वर्गो। लेट्स कम टू लिब्रा नाउ। Now for Librans, I see that this transit is in the 10th house, and ये तो टाइम है आपको recognition मिलने का, काम पे आपके जो भी एफर्ट हैं उनको सराहा जाएगा, नोटिस किया जाएगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अपने घर पे और काम पे ना आप कंफर्ट लाना चाहेंगे, मतलब थोड़ा आराम लाना चाहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहते, और वो एज अ रेमेडी आपके लिए अच्छा भी होगा। आप फुट रेस्ट अपने ऑफिस ले जा सकते हैं, बैक पिलो अपने ऑफिस ले जा सकते हैं, आप छोटे प्लांट्स ले जा सकते हैं, आप परफ्यूम्स अपने केबिन में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, फ्रेग्रेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अ रेमेडी फॉर यू राइट नाउ, क्योंकि ऐसा कंफर्टिंग, स्वीट, पीसफुल एनवायरनमेंट बनाना आपके लिए एट अ सेटिस्फैक्शन लेवल, वेदर इज पर्सनल और प्रोफेशनल, काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपका कोई नया रिलेशनशिप आपके वर्क प्लेस पे शुरू हो सकता है, तो अगर आप अपॉर्चुनिटीज ऐसी ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली यूज दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। आपके घर में काफ़ी गेस्ट इस टाइम पे आ सकते हैं, मोस्टली दे विल बी किड्स एंड फीमेल लेडीज, फैमिली पीपल, तो ये थोड़े से फन एंड फ्रॉलिक वाला टाइम रहेगा घर पे, जहाँ पे कभी कभी होता है ना कि लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, फ्लैटमेट आ गया है, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं, अगर आप फैमिली पर्सन है तो गेस्ट आ गए, और कुछ फैमिली बच्चे घर पे आ गए मिलने के लिए, तो थोड़ा इस टाइप का टाइम रहेगा, थोड़ा रिलैक्सिंग और कंफर्टिंग माहौल है जो कि आपके लिए अच्छा है। दैट्स ऑल फॉर लिब्रा। लेट्स कम टू स्कॉर्पियो नाउ। नाउ फॉर स्कॉर्पियोज, दिस ट्रांजिट इज इन योर 9th हाउस। तो मुझे लगता है कि लर्निंग का टाइम है ये। मैं आपको सजेस्ट भी करूंगी कि अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ नया कोर्स करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा टाइम है और आपको मन भी करेगा कुछ नया सीखने का। इनफैक्ट जो आप काम करेंगे ना, उसमें भी आप अपना दिमाग बहुत लगाएंगे, आप उसमें सर्च बहुत करेंगे कि बस जो काम है वही काम पे आपको फोकस नहीं करना है, आप उसके अलावा भी कुछ चीजें सोचने की कोशिश करेंगे कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। इनक्विजिटिव, क्यूरियस माइंड आपका जागेगा इस टाइम पे। लक आपका साथ देगी। ट्रैवल मुझे लगता है कि इस टाइम पे बढ़ सकता है। सोशल मीडिया और ट्रैवल के थ्रू आपको आपका स्पाउस मिल सकता है, तो अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, ऑल्दो मुझे अभी शादी होने के योग थोड़े कम लगते हैं बिकॉज ऑफ अदर ट्रांजिट्स, लेकिन रिलेशनशिप अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ट्रैवल के दौरान या ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपको आपका पार्टनर मिल सकता है। तो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटी, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। आई वुड से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश करिए, फॉरेन में मार्केट डालोगे तो रिटर्न अच्छा इस टाइम पे आपको मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर स्कॉर्पियो। लेट्स टॉक अबाउट Sagittarius next. So Sagittarius, I see that transit is in your 8th house. By the way, मुझे लगता है कि आपके स्पाउस, अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ की इनकम बढ़ने वाली है, तो उनके थ्रू आपको थोड़े फाइनेंशियल गेन्स इस टाइम पे हो सकते हैं। सडनली आपको एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ऑकल्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा, विच इज ग्रेट। आई मीन, इस तरह का कोई सब्जेक्ट आपको मिलता है जहाँ पे आपको डूबने का मौका मिलता है एस्ट्रोलॉजी में, तो ऐसा बहुत अपॉर्चुनिटी है कि रिसर्च आप करते रहें और उस सब्जेक्ट में डूबते रहें, कभी उसकी पढ़ाई खत्म ही नहीं होती है। तो
ऐसी अगर फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आपको सडन गेन्स भी इस टाइम पे हो सकते हैं, कहीं से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, वहां से आपको इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा मिल जाए, या फिर कहीं आपने पैसा लगाया हो, वहां से कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, सडनली कोई आपको पैसा लगाने की नई अपॉर्चुनिटी मिल गई, नए स्टॉक्स में आपने पैसा लगा दिया, स्पेशली कहीं किसी फ्रेंड से आपको कोई लीड मिल सकती है कि भाई यहाँ पे पैसा लगा दे, तो आपको वो सुनना भी चाहिए। आपके वर्क प्लेस पे आपके रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं। तो अगर आप नए रिलेशन बनाना चाहते हैं, आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो वर्क प्लेस वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू टैप ऑन। एंड व्हेन आई से वर्क प्लेस, यूजुअली सिर्फ लोग उतना ही समझते हैं कि जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, बट दैट्स नॉट इट। वर्क प्लेस कैन ऑल्सो मीन कोई आपके ऑफिस में इंटरव्यू देने आया, आप उससे ऑफिस में एक बार मिले, आपको पसंद आ गया, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी हम वर्क प्लेस पे किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, he might just walk in or she might just walk in and you meet that person, and later on you meet that person outside and then you realize that oh, the first time I met you was at work. So उस तरह की चीज़ें भी डेफिनेटली हो सकती हैं। जॉइंट एसेट्स स्पाउस के साथ बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली स्पाउस के साथ जॉइंट एसेट्स। अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी आप इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लोर ज़रूर करिए इस महीने। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए जो ट्रांजिट है ये आपके 7th हाउस में हो रहा है। मुझे लगता है कि मैरिज और बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। मैरिज से आपका बिजनेस बढ़ेगा। मैरिज, व्हाट आई मीन इज, मैरिज पार्टनर के थ्रू आपको कुछ अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं जहां पे बिजनेस एक्सपेंशन हो सकती है। पार्टनर के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। Of course, it depends on the entire chart because we have to look at other transits and your personal promise of the horoscope also, but definitely that's an opportunity as per the transits. Work relationship can be there. So if you want to get into a new relationship and you want to explore, then I would say workplace is a great way to do that. Generally लोग जब हम relationships की बात करते हैं तो सिर्फ यही सोचते हैं कि workplace पे है यानी वो मेरा कोई colleague है या team member है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। मेनी टाइम यू somebody came as just for an interview and you meet this person, later on you realize कि हाँ, सबसे पहली मुलाकात हमारी वर्क प्लेस पे हुई थी, now I'm married to this person, but I realized that first time when we met he just walked in or he was just looking for some directions at work, maybe he was from some other team or he came for an interview। तो इस तरह के कुछ लोग आपको वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं। बहुत बार तो ऑफिस जाने के रास्ते में, ट्रैवल में मिल जाते हैं लोग जिनसे हमारी दोस्ती हो जाती है अक्सर। तो इसके अलावा मैं देख सकती हूँ कि जॉइंट एसेट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस के साथ एसेट्स जरूर बनाइए, पार्टनरशिप कर सकते हैं। मुझे लगता है अपने लुक पे भी आप काम करेंगे, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, नया हेयर कट करा सकते हैं। यू माइट जस्ट बी अ लॉट मोर इन्वॉल्व इनटू मेकअप एंड ब्यूटी इफ यू वर नॉट बिफोर। You want to go for a look change also, जिसको हम transformation कहते हैं या makeover. You might be interested into that this month or this transit. Let's talk about the next one, which is Aquarius. Now for Aquarians, what I see is that this transit is in the 6th house. पहली बात तो emotional issues will be something that you will encounter at your workplace. लोगों की problems आप solve कर सकते हैं या आप खुद एक emotional पचड़े में पड़ सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे। इसके साथ साथ कोई लीगल इशू आ सकता है, लोन आपके सर पे चढ़ सकता है। मैं आपको एडवाइस करूंगी इस टाइम पे लोन आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो लोन लेंगे वो बहुत जल्दी का काम होगा, इमोशन में लिया गया होगा और किसी के सजेशन पे होगा। किसी फ्रेंड ने कह दिया कि चल ऐसा कर ले लोन, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा आपको फॉलो नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। एक्सपेंसेस बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं। अगर आप फीमेल हैं, पीसीओडी पीसीओएस का इशू है ऑलरेडी, तो इस टाइम पे वो बढ़ सकता है। यू माइट वांट टू कीप अ चेक ऑन दैट। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आपको किडनी रिलेटेड और शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो डायबिटीज के अगर आप ऑलरेडी पेशेंट हैं तब तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और अगर आप नहीं हैं तो आप जरूर इस टाइप के यू गो फॉर सम टेस्ट, स्पेशली डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट ऑल्सो। बट इस तरह की चीज़ों से आपको थोड़ा सा
बच के रहना पड़ेगा. So it looks for me as a time which is something like where you have to take care a lot on your health and finances overall, this transit. That's all for Aquarius. Next is Pisces. For Pisces, I see that this transit is in your 5th house. लगता है कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, पुराना रिलेशन भी आपके पास वापस आ सकता है. इन्वेस्ट करने का ये टाइम अच्छा है. अगर आप स्टॉक शेयर्स में इन्वेस्ट करें वो अच्छा है. पुराना पैसा इन्वेस्ट किया गया बढ़ेगा इस टाइम पे. यू विल बी अ सोशल बटरफ्लाई. लोगों से मिलना जुलना, फ्रेंड्स बनाना, इवेंट्स पे जाना, पार्टीज में जाना, शादियां अटेंड करना, इस तरह की चीजें बहुत करेंगी. हो सकता है फैमिली इवेंट्स भी हो, बिकॉज मर्करी इज विद वीनस हियर विच इज योर 4th हाउस ऑल्सो. मुझे ये भी लगता है कि अगर आप बिजनेस में हैं तो गेन्स का टाइम है, गेन्स होंगे, पैसा आपका बढ़ेगा. अगर आप जॉब में भी हैं तो भी मुझे इंक्रीमेंट होता हुआ, बोनस मिलता हुआ, इंसेंटिव मिलता हुआ नजर आता है. और अगर ऐसा आप चाह रहे हैं, पैसा बढ़ाना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये सही टाइम है उस तरफ एफर्ट डालने का. तो ज़रूर आप उस तरफ अपने एफर्ट्स को डालिएगा, क्योंकि ये टाइम अच्छा है पैसा बनाने के लिए, थ्रू इन्वेस्टमेंट्स और थ्रू पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट एट योर वर्क और बिजनेस. That's all guys from my side. I'll be soon back with another video. Please subscribe and like this video. Share it with your friends and family so that they are enlightened, aware about what's going on in the universe. And do subscribe, tap the bell for more videos and for notifications from this channel. Also, thank you for showing your trust. If you've reached till here, watched it till the end, thank you so much for watching.